A very good afternoon to class 11th. Now today we will discuss about the triple column cash book. We say that cash book with bank and discount column. The instead of triple column cash book, हम इसको बोलते हैं cash book with bank and discount column. Now this is a format. I'm not giving the full format over here because we need to note down the transactions also. To just understand, the first one is date, particular. We write general folio here. Then first column is cash. We write bank column here, discount column. So this one is debit side. Then again date, particular, general folio, cash, bank and discount. This is credit side. Again, the rule of cash and bank is almost same. Okay, because if you understand this thing, cash is also asset. So whenever cash increases, it's your asset. And similarly, the amount deposited in bank, we also call it cash at bank. जो आपका पैसा जमा है बैंक में, that simple term we also known as cash deposited in bank, or in simple term we call it cash at bank. Okay, it also refers asset. So whenever asset increases, it will be debited. Whenever asset decreases, it will be credited. आपके पास कितना कैश आ रहा है? It come on debit side. कहाँ कैश जा रहा है? It come in credit side. Same rule applicable for the bank also. But the discount rule, if you know that discount is an expense. So whenever you pay, whenever you receive cash, you allow discount. ठीक है? If it's in full settlement, अगर आपकी बात full settlement हो रही है, suppose you have to receive 10,000 from Ram and you are receiving 9,500. Okay, so it means you are allowing 500 rupees a discount. It's an expense. So all expenses, because we follow a discount column as nominal. तो discount में जो भी चीजें हम आएगी, जो भी हमारा खर्चा होगा, rate to discount, it will be come under debit side. जब भी आप discount दोगे, it's an expense for you, it's come on debit side. And whenever you receive discount, whenever you pay money, you receive discount. ठीक है? Whenever you pay money in full settlement, with term we call it, ठीक है? Because you have to pay, suppose 50,000 to Mohan, and you are actually paying 48,000. So you are receiving discount. So you receive discount when you pay cash in full settlement, and you pay discount. Okay, when you pay discount when you receive cash in full settlement. This is a term you need to understand it. Now there are certain parts are there before we start the triple column cash book. There are certain terms you need to note down. So please note down one by one because it's an important part. हम जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक को पढ़ते हैं और वी से हम जब ठीक है कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम को पढ़ते हैं तो वी नीड टू नो अंडरस्टैंड दैट देयर पर्टिकुलर की टर्म्स आर देयर. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज नोट डाउन विद मी contra entry. Then I give you example also. What are contra entries? The first thing is contra entries. Now what is contra entries? The contra means when a single transaction, please note down with me, when a single transaction affects both debit and credit side of when a single transaction affects both cash and bank column, affects cash and bank column, both cash and bank column. When a single transaction affects both cash and bank column with the same amount, Okay, understand that when a single transaction affects both cash and bank column with the same amount. Now how can it possible? When a single transaction affects both cash and bank column with the same amount, it is known as contra transaction. हम उसको क्या बोलते हैं? It is known as contra transaction. Now understand term, ये होती क्या है? What are contra entries? So basically there are two types of contra entries. हमारी books में जो given होता है, there basically are two types of contra entry. Note down this one. I hope this part is clear. What is the definition of contra entry? The first thing is, if you understand them, amount deposited in bank. The first thing is amount deposited in bank
In 1 month, these type of questions ask, what are contra entries? Amount deposited in bank. आपने बैंक में पैसा जमा किया. Now how it will affect? Understand term. बहुत ध्यान से देखिएगा because the important part. The first one is amount deposited in bank. Now कैसे? Now suppose you deposit amount in bank. इसकी एंट्री क्या होती है? आपने बैंक पे पैसे जमा किया. We write bank account W cash account. And your amount deposited in bank, suppose rupees 10,000. So you will write here bank account debit. You write here bank account debit 10,000. And it will reduce your cash 10,000. अगर आप इसको देखें, if you check the result, the net effect is zero because आपने पैसा कहाँ जमा किया? अपने अकाउंट में. तो आपके पास से जो कैश था वो कम हो गया, लेकिन बैंक का कैश बढ़ गया. जो बैंक के पास कैश आपने जमा किया बढ़ गया. तो if you see the net result is zero. ओके हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजेक्शन अकर हुई है. आपने पैसा कहाँ जमा किया है? बैंक में. दैट्स व्हाई से अमाउंट डिपॉजिट बैंक. आपने जो आपकी जेब में या आपके बिजनेस में या आपके गले में, हम जो सिंपल टर्म में बोलते हैं, आपकी तिजोरी में जो पैसा पड़ा था आपने उसको उठा के बैंक में जमा कर दिया. ओके इट वाज सिंपल टर्म. आपके जो घर में पैसा पड़ा था, ओके ये पैसा आपने बैंक को दे दिया कि भाई आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, डिपॉजिट इन बैंक. तो हुआ क्या? आपका कैश कम हो गया बिजनेस का, लेकिन बैंक में जो आपका अकाउंट था वो बढ़ गया. तो इफ यू सी द अल्टीमेट रिजल्ट, आपके पास कुछ क्यों चेंज नहीं हुआ, आपकी एसेट बढ़ रही है, एसेट ही कम हो रही है. नाउ बट दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बिकॉज if you see the definition says that when a single transaction affects both cash and bank column with the same amount. So here the cash and bank column is affecting with the same amount. Now how? कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? Now if you see you deposit money into bank, आपने बैंक में पैसा जमा किया तो आपका क्या बढ़ रहा है? बैंक बढ़ रहा है. So we write here to cash. आपका बैंक बढ़ गया which is 10,000. I hope you can able to see it because less space over here. तो आपका बैंक कितना बढ़ गया? 10,000. And to identify this transaction हम यहाँ लिखते हैं contra. We write C word. C word means contra. Similarly, if you see, we write by bank. क्योंकि आपका क्या कम हुआ है? कैश कम हुआ है. We write C word again here. And आपका जो कैश था वो 10,000 rupees कम हो गया. So this one is called contra entry because if you see your bank is increasing by 10,000. आपका जो बैंक है वो बढ़ रहा है, ओके लेकिन आपका जो कैश है वो कम हो रहा है. नाउ आपका बैंक क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज यू डिपॉजिट कैश इनटू बैंक. आपने क्या जमा किया है? कैश. कहां पर? बैंक में. हाउ मच? 10,000. इन द सेम मैनर योर कैश इज डिक्रीजिंग. आपका कैश कम क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने बैंक को पैसा दे दिया है. आपने पैसा किसको दिया? बैंक को दिया है. तो आपने कैश, बिजनेस का कैश निकाल के कहां डाला है? बैंक में. तो हियर वी राइट बिकॉज द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट. तो आपका बैंक बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज यू डिपॉजिट कैश. आपका कैश कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? बिकॉज यू डिपॉजिट मनी इनटू बैंक. तो आई होप इट्स क्लियर हाउ वी रिकॉर्ड द कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस. द फर्स्ट वन इज अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक. नाउ अगेन इसको दोबारा चेक करिए. You deposit money in bank. आपने बिजनेस का पैसा जमा किया है बैंक में, ओके तो ये मींस एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट कैश. ये आपको मालूम है बिकॉज आपने बैंक के पास ये पैसा जमा किया है. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट. नाउ हियर इफ यू सी दैट वी राइट टू कैश. हमने कैश क्यों लिखा? क्योंकि आपका बैंक बढ़ रहा है. तो वी राइट बैंक साइड हमारी जो डेबिट साइड है वो बढ़ गया है बिकॉज बैंक के पास कैश आपने जमा कर दिया है, ओके तो इट इंक्रीजेस योर बैंक बैलेंसेस. ये आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा. इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, आपका बैंक बढ़ गया. नाउ हियर इफ यू चेक आपका कैश कम हुआ है क्योंकि जो बिजनेस के पास कैश था वो कम हो गया है क्योंकि आपने कैश को उठा के कहाँ जमा कर दिया? बैंक में. तो यार कैश इज रिड्यूसिंग. नाउ कैश क्यों कम हो रहा है? बिकॉज इफ यू मेंटेन द कैश लेजर आपका कैश कम हो रहा है. वी कैन नॉट राइट कैश में कैश नहीं थे, हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक. कैश का कम क्यों हो रहा है? बिकॉज ये पैसा कहाँ जमा हुआ है? बैंक में. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. द सेकंड ट्रांजैक्शन इज द फर्स्ट वन इज The first contra entry is amount deposited in bank. पहले जो contra entry होती है वो होती है amount deposited in bank. Second transaction is amount withdraw from bank for office use. Important part. Amount withdrawn from
bank for office use. अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. आपने बैंक्स में विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए. अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, से सपोज 20,000 रुपीज. 20,000 आपने अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. नाउ दिस टर्म मीन्स, दिस कंडीशन जो बोलते हैं, आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के, नॉट फॉर द पर्सनल यूज. If you write, if it's mentioned here, amount withdrawn from bank for personal use, that's a drawing. It's not a contra entry. अगर amount को withdraw किया है for personal use, then it's a drawing. Okay? But it's mentioned here, amount withdrawn from bank for office use. Now, if you do a journal entry, how we say? We get cash. Do we write cash account debit? आपका क्या काम हो गया? Bank. Because who's the giver? Bank is the giver. Do we write cash account debit 20,000 to bank account 20,000. Okay, we write cash account debit to bank account because आपका कैश बढ़ रहा है, which is 20,000. आपका बैंक कम हो रहा है, which is 20,000. तो how we do the counter entry? हम counter entry कैसे करेंगे? Now check again. आपका कैश बढ़ रहा है, तो we write here to bank. हम कैसे लेंगे? We write bank again contra, and the cash will be increasing because you are withdrawing money. आपने बैंक से पैसा बिजनेस में लगाया, तो आपके पास कैश बढ़ रहा है. तो राइट टू बैंक अकाउंट, इट इंक्रीज द कैश साइड. नाउ हियर वी राइट बाय कैश अगेन कॉन्ट्रा, एंड योर बैंक इज डिक्रीजिंग बाय 20,000. सॉरी, नॉट 10,000, इट्स 20,000. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. अपोजिट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, नाउ यू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज. आपने बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए. It's an important part. So when you withdraw money from bank for office use, we simply write cash account debit to bank account. Now, if you see, your cash is increasing. आपका क्या बढ़ रहा है? Cash बढ़ रहा है. क्या कम हो रहा है? बैंक कम हो रहा है. So we write to bank because you get money from bank. You write to bank and cash is increasing by 20,000. Here we write by cash. आपका cash कम हो रहा है. Why cash is decreasing? Because you are withdrawing money. आपने पैसा withdraw किया है. कहाँ से? बैंक से. तो आपका बैंक कम हो रहा है. इज इट क्लियर नाउ? तो दीज टू आर द कॉन्ट्रा एंट्रीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज अंडरस्टैंड टर्म वेरी केयरफुली बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट द कॉन्ट्रा एंट्री. द बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री आर दोज एंट्री विच अफेक्ट्स बोथ कैश एंड बैंक कॉलम विद द सेम अमाउंट. जो कैश एंड बैंक कॉलम को अफेक्ट करती हैं एट द सेम, ठीक है, विद द सेम अमाउंट. इफ यू चेक हियर, यू विथड्रॉ मनी, तो ये कैश इज इंक्रीजिंग बाय 20,000 and your bank is decreasing by 20,000 with the same amount. In the first case, you deposit money into bank, your bank is increasing by 10,000, your cash is decreasing by 10,000 with the same amount. So this term is called contra entry. We cannot write here to bank or to cash बढ़ रहा है. What do we write? हमारा cash क्यों बढ़ रहा है? Because we withdraw money from where? बैंक से. हमने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए. Here we cannot write by bank in bank account. Where हमारा बैंक क्यों कम हो रहा है? Because we withdraw. हमने क्या निकाला है? कैश निकाला है. कहां से? बैंक से. आई होप दिस टू पार्ट्स आर क्लियर. ओके, तो दीज आर नोन एज अ कॉन्ट्रा एंट्रीज. नेक्स्ट पार्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म. द नेक्स्ट टर्म, यू नोट डाउन दिस वन. आई होप द कॉन्ट्रा एंट्री इज क्लियर. द थर्ड पोर्शन इज check receipt and deposit into bank same day. Now here important part is, note down this is transition number 2 after contra entry. Check receipt and deposit it into bank. Deposit it into bank same day. आपको चेक मिला है, चेक रिसीट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे. आपको चेक मिला है और आपने बैंक में जमा कर दिया है सेम डे. आई होप इट्स क्लियर. आपने किसी को गुड सोल्ड किया था, उसने आपको चेक दिया. सपोज 5th October यू रिसीव अ चेक. ऑन द 5th October यू डिपॉजिट द चेक इनटू द बैंक. तो अल्टीमेटली आपको क्या बढ़ रहा है? बैंक बढ़ रहा है. तो वी राइट चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे. तो व्हाट वी राइट हियर, अंडरस्टैंड दिस टर्म. You receive a check and deposit into money on the same day. तो we simple say when we pass the entry, हम transaction कैसे pass करेंगे? In this case, suppose you receive a check from Mohan.
ओके आपको चेक मिला मोहन से और आपने बैंक में जमा कर दिया, तो व्हाट यू राइट एन सिंपल एंट्री बिकॉज यू डिपॉजिट चेक इनटू बैंक, यू राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट. Okay, because you receive a check and you deposit the check in the same day. आपको चेक मिला 5 अक्टूबर को और आपने 5 अक्टूबर को ही बैंक में जमा कर दिया. ओके तो चेक किसका था? आपका क्या बढ़ रहा है? बैंक बढ़ रहा है एंड यू डिपॉजिट चेक इनटू, ठीक है, दिस चेक बिलोंग्स टू मोहन. तो ये सिंपल राइट हियर, इफ यू सी यू राइट हियर टू मोहन, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, यू राइट टू मोहन एंड योर चेक इज इंक्रीजिंग बाय लेट्स सपोज 50,000. Suppose you receive a check from Mohan and deposit on the same day. आपको चेक कितने का मिला? 50,000 का. And that's 50,000 रुपये check you directly deposit into bank. ये चेक आपने बैंक में जमा कर दिया. This is clear? तो चेक रिसीव और आपने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो आपका क्या बढ़ गया? बैंक बढ़ गया. Please don't forget, don't misunderstood. It's not a contra entry. आपका बैंक कॉलम और कैश कॉलम दोनों एक साथ ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है. Okay, these transaction cannot affect bank and cash column simultaneously or with together only. To understand them, you receive a check from Mohan and you receive the check जो आपको मोहन से मिला, that check आपने कहाँ जमा कर दिया? बैंक में. तो हो क्या रहा है? आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है. तो very simple, right? To Mohan, it's you are increasing your bank side. To write to Mohan and your bank balance is increasing 50,000. I hope this is clear. So whenever we receive check and deposit it into bank same day, your bank is increases. Okay, because आपके पास जो चेक था आपने बैंक में जमा कर दिया. Now इसके बाद important transaction है. The lot many students make some mistake in that. So before I note down this thing, I need to rub this. Okay, I need to make the format again. Okay, this one is date, this JF, column of cash, column of bank, column of discount, then date and wait. Second part is very important one. Now check receipt. Check receipt and deposit it into bank and deposited into bank third day. Now what it means? आपको चेक मिला, when you receive a check, okay, and you deposit the check third day into the bank. आपने same day चेक को बैंक में जमा नहीं किया है, आपने इसको third day किया है. Now it means suppose you receive a check on 5th October. आपको 5th अक्टूबर को चेक मिला है, okay? And you deposit a check on 8th October. ये चेक आपने जमा कब किया? 8th अक्टूबर को. You understand what some differences here? In previous part, ठीक है, this is second part of that. In previous part, you receive a check and deposit into bank same day. But here, you are receiving a check and deposit it into bank third day. तो जिस दिन आपने चेक रिसीव किया, if you check receive, जिस दिन आपने चेक रिसीव किया उसकी एंट्री देखिए. अगर हम चेक रिसीव किया सपोज ऑन 5th अक्टूबर को हमने चेक रिसीव किया, तो इसकी एंट्री जो होती है, सपोज यू रिसीव अ चेक फ्रॉम रहीम, तो हम एंट्री करते हैं वी रिसीव अ चेक फ्रॉम रहीम, तो वी राइट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रहीम. हम इसकी एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रहीम. ना सपोज चेक ऑफ ₹10,000. क्यों? आपके पास अभी चेक आपके पास है, आपने ये चेक बैंक में जमा नहीं किया है. इज इट क्लियर? तो वी राइट चेक इन अकाउंट डेबिट the name of the giver who give the check. So here the giver is Rahim. So we write the entry check in hand account debit to bank account. Now why this situation? Because ये check आपने रहीम से ले तो लिया, लेकिन आपने बैंक में जमा नहीं किया. Maybe you forget, or maybe उस दिन बैंक बंद है, or maybe कोई हॉलीडे आ गई, आपने चेक जमा नहीं किया. You deposit check on third day. बीच में संडे हो गया, बैंक क्लोज था, आप चेक को जमा नहीं कर पाए. Any reason? तो इट मीन्स दैट जब तक ये चेक आपके पास रहेगा आप इसकी एंट्री करेंगे चेक इन अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट द नेम ऑफ द गिवर. हियर द नेम ऑफ द गिवर इज रहीम. तो वी राइट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड यू डिपॉजिट चेक ऑन द थर्ड डे. आपने ये चेक जमा कहाँ किया? आपने थर्ड डे जमा किया है. तो वी राइट द एंट्री, जब आप चेक को बैंक में जमा करेंगे तो आप सिंपल एंट्री पास, यू पास दैट
ओके, बैंक ऑन डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, आप जिस दिन ये चेक जमा करेंगे, सपोज डिपॉजिट चेक ऑन 8/10, तो वी राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तब एंट्री क्या होगी पहले समझ लिए, फिर हम इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे। देन बैंक अकाउंट डेबिट, आपने ये 8 अक्टूबर को ये चेक बैंक में जमा कर दिया, तो व्हाट विल राइट, यू राइट दैट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये आपने चेक इन हैंड अकाउंट टू रहीम किया क्योंकि ये चेक आपके पास अभी आपके पास पड़ा है। यू डिडंट डिपॉजिट दिस चेक इनटू बैंक, यू डिडंट डिपॉजिट द मनी इनटू बैंक, आपने ये चेक अभी बैंक में जमा नहीं किया था। यू डिपॉजिट चेक ऑन 8 अक्टूबर, थर्ड डे। तो देन ऑन द 8 अक्टूबर जो चेक आपने रहीम से रिसीव किया है, यू डिपॉजिट दैट चेक टू द बैंक, आपने कहां जमा किया, बैंक में। तो व्हाट विल द एंट्री, यू राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। नाउ तो इसकी ट्रांजेक्शन तो कहीं पर आएगी नहीं, कहीं कैश बुक में नहीं आएगी, बिकॉज इसमें कहीं बैंक वर्ड आ रहा है। आपके पास चेक आपके पास पड़ा है, आपने बैंक पे जमा नहीं किया, आपने 8th को, यू राइट 8 अक्टूबर को आपने चेक जमा किया बैंक में, तो राइट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आपका बैंक 10,000 रुपीज बढ़ जाएगा। आई होप दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपका जो बैंक पार्ट है 10,000 रुपीज बढ़ जाएगा क्योंकि आपने 8th को, 5th को कोई कैश या बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो पैसा आपने अभी जमा नहीं किया है। नाउ जिस दिन बैंक को चेक मिलेगा उस दिन उसकी ट्रांजेक्शन होगी, तो आपका बैंक कब बढ़ रहा है, 8th को। तो व्हाट वी राइट, वी कैन नॉट राइट टू रहीम, वी राइट टू चेक इन हैंड अकाउंट। जो चेक था आपने बैंक में जमा कर दिया। आई होप दिस ट्रांजेक्शन इज क्लियर। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, lots many students make some mistake on that। तो वी सिंपल है टू चेक इन हैंड अकाउंट, आपका बैंक बढ़ गया। तो दिस इज द रिगार्डिंग कैश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक is a very important part. Listen it very carefully. Apart from contra entry, it's not a contra entry. Only two types of contra entries are there. One is when we check when we amount deposit to bank, जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, और जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं फॉर ऑफिस यूज। तो अपार्ट फ्रॉम these two, there are no other contra entries are there. Okay? And listen on this term. आप तो here we receive a check. You receive a check on 5th October. तो यहाँ पर कहीं बैंक में है, आपने चेक ले लिया रहीम से, उसको बैंक में जमा नहीं किया बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ओके, ऑन 8 अक्टूबर यू डिपॉजिट चेक इनटू बैंक, आपने 8th को ये चेक जमा किया बैंक में, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इन हैंड अकाउंट। तो वी राइट सिंपली टू कैश इन हैंड, और आपका बैंक बढ़ रहा है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट अगेन इट्स इंपॉर्टेंट वन, व्हेन यू पास द एंट्री। ओके, next section, note down please. Next thing is, note down, this is section number, apart from 3rd or 4th, whatever it is, note down. When you payment by check, when you pay payment by check, आपने जब चेक से पेमेंट किया है, we write payment by check, हमने जब चेक के थ्रू पेमेंट किया है। Now when we made the payment through check, तो what do you write? Suppose you pay salaries by check, तो we write salaries account debit to bank account। हम एंट्री पास करते हैं salaries account debit to bank account। Suppose you pay wages, we pass entry wages account debit to bank account। It's very rare when we pay check wages by check। Suppose you pay electricity bill, okay, through check, तो we write electricity bill account debit to bank, because check is clear from the bank। check कहाँ से clear होगा, बैंक से। I hope this is clear। तो whenever you pay any payment by check, जब भी आप किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो you write आपका बैंक का नंबर, you simply write by salaries account, by wages account, और by electricity bill account, bill account। तो here your bank is decreasing, आपका क्या कम हो रहा है, बैंक, because you are paying your expenses through check। कोई भी expense, you pay your newspaper bill, you purchase anything for the business, you pay the money through check, तो your bank will be decreases, the entry will be expenses account debit to bank, right? Expenses account debit to bank। So this is how we take place regarding when we pay money through check।
I hope this part is clear. Important one. Amount withdrawn from bank. Amount withdrawn from bank for office use. Sorry, for personal use. ऑफिस यूज हम कर चुके हैं. फॉर पर्सनल यूज आपने अमाउंट विड्रॉ किया बैंक से फॉर पर्सनल यूज. तो विल द एंट्री. सपोज यू विड्रॉ 10,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज. तो व्हेन वी विड्रॉ मनी फॉर आवर पर्सनल यूज, नॉट फॉर द बिजनेस यूज. जब भी हम पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वी कॉल इट ड्रॉइंग. हम क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग. तो ये वी सिंपली राइट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हमने पैसा विड्रॉ किया है तो वी सिंपल राइट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हम एंट्री पास करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट व्हाटएवर. सपोज यू विड्रॉ मनी 50,000 फ्रॉम द बैंक. आपने बैंक से पर्सनल यूज के लिए 50,000 रुपये निकाले. आपका बैंक तो कम हुआ बट दिस मनी डजंट यूटिलाइज फॉर द बिजनेस पर्पस. ये पैसा बिजनेस के लिए नहीं आया. आपने इस पैसे को पर्सनली विड्रॉ किया है. तो मीन्स यू विड्रॉ द मनी फॉर द पर्सनल यूज. आपने इस पैसे को पर्सनली यूटिलाइज किया है. ओके, तो वी राइट हियर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हम सिंपल एंट्री जो पास करते हैं वो करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो हाउ वी राइट? आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है बिकॉज यू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. यू राइट हियर बाय ड्रॉइंग अकाउंट. हम इसकी एंट्री करते हैं बाय ड्रॉइंग एंड योर बैंक विल बी डिक्रीजेस बाय 50,000. तो वी राइट हियर बाय ड्रॉइंग और यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे 50,000 रुपीज. Means you withdraw money from the bank for your personal use. I hope this part is clear. This is transaction number 4th or 5th. Suppose this is 5th. Okay, note down. Then note down the next 6th one. This one is amount withdrawn from bank for personal use. 6th is this is an important transaction normally asked in cash book. When we prepare the cash book with bank and discount column. हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. द फर्स्ट यू नोट डाउन द मेन ट्रांजैक्शंस आर दियर. नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक. समटाइम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक ऑन योर बिहाफ. नाउ व्हाट इट मींस, इंपॉर्टेंट है. आपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया है. सपोज आपने बैंक में ही आरडी खोली है या एफडी खोल रखी है. बैंक एफडी में इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करता है. तो वो आपके घर आके आपको इंटरेस्ट नहीं देता, वो आपके अकाउंट में ही इसको क्रेडिट कर देता है. इट मीन्स क्रेडिट मीन्स बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है. अंडरस्टैंड दिस सम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं, वट एवर मनी यू डिपॉजिट इन बैंक, ओके, इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बैंक. तो बैंक क्या बोलता है, बिकॉज बैंक की लायबिलिटी है कि उस पैसे को संभाल के रखे. तो इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बैंक. वट एवर मनी यू डिपॉजिट इन बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा किया. आप क्यों जमा करते हैं बैंक में पैसा? ताकि पैसा सेफ रहे और ऑफ कोर्स उसमें इंटरेस्ट मिले. इफ इट्स सेविंग अकाउंट और इट्स एफडी अकाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट अकाउंट ओवर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एफडी आरडी अकाउंट, सेविंग अकाउंट. आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है ना. बैंक की लायबिलिटी है कि वो आपको इंटरेस्ट पे करे बिकॉज वो पैसा आपने कहाँ जमा किया है? बैंक में. ऐसे क्लियर? और आपके लिए क्या है? एसिड है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो बैंक क्या करता है, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके घर में आके नहीं देता. ओके, बैंक वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में इंक्लूड कर देता है, ऐड कर देता है. इज इट क्लियर? सपोज इस ये बात है इंटरेस्ट की. व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड टर्म क्या है? माइट बी मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिविडेंड इज. डिविडेंड इज द अमाउंट ऑफ मनी विच वी रिसीव व्हेन वी इन्वेस्ट मनी इन शेयर्स. अगर हम शेयर्स में पैसा जमा करते हैं तो जब हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, कंपनी हमें, कोई भी कंपनी है, दिस वी टॉक अबाउट जॉइंट कंपनी, जो जॉइंट कंपनीज होती हैं जिनके आगे लिमिटेड वर्ड लगता है, वो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं. बहुत सारी स्टोरीज हैं इस बारे में जो व्हेन वी, ठीक है, जब स्कूल्स खोलेंगे तो मैं आपको ये स्टोरीज बताऊंगा कि कैसे कंपनी कैसे डिविडेंड प्रोवाइड करती है. बट अंडरस्टैंड टर्म, जब भी कोई आपने सपोज रिलायंस के शेयर परचेज किए हैं, ओके, आफ्टर 1 ईयर कंपनी ने बोला कि ठीक है वी अर्न अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्यों ना हम अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड दें. तो डिविडेंड इज द अमाउंट ऑफ मनी जो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है. तो मीन्स बैंक तो आपकी रिलायंस तो आपके घर भी नहीं आएगी आपको आपके कैश देने के लिए. वो क्या करती है, जो अकाउंट नंबर आपका जमा है उनके पास, वो उसमें वो अमाउंट डाल देती है. तो मीन्स हियर द बैंक इज रिसीविंग इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन योर बिहाफ. बैंक जो है आप वो आपके बिहाफ में
ठीक है, आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कर रहा है, तो हो क्या रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है. तो इफ यू पास द एंट्री, वी राइट हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और वी सिंपल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट. आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है बिकॉज यू आर रिसीविंग डिविडेंड और इंटरेस्ट फ्रॉम वट एवर सोर्सेस. जहां भी आपने पैसा जमा किया हुआ है, बैंक आपके बिहाफ में इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, बैंक आपके बिहाफ में डिविडेंड रिसीव कर रहा है. तो हियर इट मींस दैट योर कैश इज इंक्रीजिंग, योर बैंक इज इंक्रीजिंग. तो यू राइट हियर टू इंटरेस्ट account. We write to interest account because the bank is receiving interest. Suppose the interest amount is 5,000 और dividend की जो amount है suppose it's 10,000. तो you are receiving interest. तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है. तो we write here in bank side 10,000 rupees you are receiving as interest. Similarly, suppose you are receiving dividend. We write to dividend account. Suppose this is here's 5,000. And here's 10,000 as a dividend. तो होगा क्या, ठीक है, इट सिंपली इंक्रीज योर बैंक बैलेंसेस. आपके जो बैंक बैलेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे बिकॉज बैंक इज रिसीविंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन योर बिहाफ. बैंक आपसे बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है और डिविडेंड रिसीव कर रहा है ऑन योर बिहाफ. दिस इज द पर्टिकुलर की पॉइंट्स रिगार्डिंग ट्रिपल कॉलम कैश बुक और द कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. Okay, similarly, when bank provides interest and dividend, in the same manner, bank can charge interest also. Next is note down some bank charges interest or commission. Bank charges interest or commission. बैंक ने इंटरेस्ट कमीशन चार्ज किया. ना व्हाट इट मींस, बैंक ने इंटरेस्ट कमीशन चार्ज किया. नाउ सपोज आप बैंक के पास गए और आपने कोई ड्राफ्ट बनाया, यू हैव टू पे, ठीक है, योर फीस फॉर एनी हाउ, ठीक है, फॉर एनी कॉलेजेस और एनी स्कूल, या आपने कुछ भी किसी को मनी ट्रांसफर किया है, तो बैंक चार्जेस कमीशन. बैंक कुछ कमीशन चार्ज करता है उस बैंक ड्राफ्ट बनाने के बदले, और जो कमीशन और किसी को ड्राफ्ट बनाने के बदले और किसी को आरडीएस करने के बदले बैंक चार्जेस सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन. तो बैंक क्या करता है, वो हमारे अकाउंट से कट कर लेता है. ओके, इज इट क्लियर. तो बैंक ने, हमने कोई ड्राफ्ट बनाया, तो जो सपोज वी मेक अ ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 2 लाख, तो बैंक ने बोला वी हैव टू चार्ज कमीशन 2,000 फ्रॉम द सेम. तो आपके कितने पैसे गए, आपके पैसे गए 2 लाख 2,000 बिकॉज 2 लाख का तो ड्राफ्ट बना एंड देन 2,000 यू पे फॉर योर कमीशन. बैंक चार्जेस फॉर हिज कमीशन. इज इट क्लियर. तो मीन्स समटाइम बैंक चार्जेस इंटरेस्ट कमीशन. अगर हमारा ओवरड्राफ्ट है, सपोज यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, अगर आपने क्रेडिट कार्ड के अंदर वी हैव टू मेक पेमेंट इन 45 डेज, अगर आप 45 डेज के बाद पेमेंट करते हैं तो बैंक क्या करता है, हमारे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है. बैंक सपोज आपने कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू यू गो फॉर शॉपिंग एंड यू स्पेंड राउंड अबाउट 50,000 रुपीज and the bank simply says you have to pay money within 45 days. Up till 45 days you didn't have to pay the money, you didn't have to pay the interest. But if you are paying after 45 days, you have to pay interest, might be 10%, or maybe you have to pay 8% interest in this thing. So the amount which you are paying extra, you are paying for interest, or are you paying for commission? Okay, this interest or commission which bank charges directly आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा. तो वी से डायरेक्टली क्रेडिटेड फ्रॉम योर आवर बैंक अकाउंट. तो हाउ वी राइट द एंट्री व्हेन बैंक चार्ज इंटरेस्ट कमीशन. तो वी राइट कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और आइदर वी से इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ने हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया. ओके, तो बैंक ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट से कट कर लेता है. तो we write here by interest, suppose the bank is charging interest 5,000. Okay, in the same manner bank is charging commission, so we write by commission account, we write by commission account. Suppose 10,000 bank charge commission, so this how we treat it. हम इसको एंट्री इस तरह से करते हैं. तो how this part is clear? You understand them? What are the key transactions are there? These are some of the special transactions which are occur. Apart from this thing, there are many other special transactions there, like
discounting bill received from the bank, or cash discount allowed, or simply dishonor of check is the important part. Dishonor of the check. Now next part you note down is important. Dishonor of the check. Now next part is dishonor of the check. Now dishonor क्या होता है? Now suppose you receive money. आपने किसी से चेक रिसीव किया. You receive a check from Rahim, which amount to rupees 50,000. और रहीम ने उसका चेक में गलत साइन किए, या डेट गलत डाल दी है, या उसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड है ही नहीं. इन दिस केस द बैंक विल रिटर्न द चेक. बैंक चेक को वापस करता है और हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं करता, पैसा नहीं बढ़ाता. दिस टर्म इज कॉल्ड डिसऑनर. और हम सिंपल टर्म में हमने पढ़ा है चेक का बाउंस होना. ओके, चेक बाउंस हो गया मीन्स सपोज उसने अगर चेक में गलत साइन कर दिया है और बैंक के पास वो चेक साइन मिला ही नहीं. जब बैंक ने वो चेक को देखा और साइन के देखा, जो साइन एक्चुअली अकाउंट होल्डर का होना चाहिए, वो अकाउंट होल्डर का साइन उससे मैच नहीं किया, द साइन विच इज पुट अप इन द चेक. तो इन दिस केस द चेक इज डिसऑनर. इन द सेम वे अगर उसमें अमाउंट गलत डाल दी है, मीन्स अमाउंट हम चेक पे दो टाइप से डालते हैं, इन वर्ड्स एंड फिगर्स. और अमाउंट ऑफ जो वर्ड्स में जो अमाउंट लिखी है और जो फिगर में जो अमाउंट लिखी है, इफ इज नॉट मैचिंग, अगेन द चेक इज डिसऑनर. और थर्ड केस द चेक इज डिसऑनर इन दिस केस जब पर्टिकुलर अकाउंट में उसने हमें 50,000 रुपये का चेक दिया है एंड दिस 50,000 रुपीज उसके अकाउंट में 50,000 का बैलेंस है ही नहीं. इन दिस केस ऑल्सो वी से चेक इज डिसऑनर. तो चेक का बाउंस होना. तो इन दिस केस होता क्या है, जब चेक डिसऑनर होता है तो बैंक ये चेक हमें वापस कर देता है, या बैंक ये चेक वापस भेजता भी. ये सिंपली सेज दैट इसमें पैसा नहीं मिलेगा. ओके, बिकॉज द चेक इज मे बी इनकम्पिटेंट, और चेक जो है वो गलत बना है, चेक में पैसा ही नहीं है, अकाउंट में पैसा ही नहीं है. तो फ्रॉम वेयर द बैंक कैन प्रोवाइड यू द अमाउंट. तो दिस टर्म इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ अ चेक. तो डिसऑनर चेक मीन्स return of the check is unpaid by the bank due to various reasons, such as insufficient fund in the parties who is giving the check. Okay, signature of the party does not match with the bank record. Wrong account number quoted on the check. Yeah, sometimes they quoted the wrong account number. Okay, अगर उसने wrong account number डाला, in that case also the check will dishonor. So in case of dishonor of a check, the bank will debit the account of the business enterprise and return the check. On intimation, the receiver such check back from the bank. Now, what it means? Suppose you receive a check from Rahim. आपने वो check उसी दिन बैंक में डाल दिया. तो we say that bank account debit to Rahim. Suppose ये transaction हुई थी. It's on 1st October 19. तो आपने transaction क्या की? When you receive check, you write to Rahim on 1st October 19. You write to Rahim and you increase your bank by 10,000 rupees. That's it. You increase your bank account by 10,000 rupees. Okay? You receive a check from Rahim which is amount 10,000. Now this check is dishonor. Sorry. When you receive the check, you write the entry bank account to Rahim. So here you simply write to Rahim account, your bank will be decreases. Your bank increases. आपका बैंक बढ़ गया. Your bank account will increases. It will be debited. आपका बैंक बढ़ रहा है. Now Rahim check was dishonor. अब रहीम का चेक डिसऑन हो गया. बैंक चेक दिस चेक. बैंक को मालूम चला 3rd अक्टूबर. तो भाई रहीम के अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है. ओके, तो बैंक नोटिफाई यू. ठीक, द बैंक विल रिटर्न द चेक टू रहीम. तो हियर राइट रहीम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हियर तो वी राइट हियर ऑन 3rd अक्टूबर by bank. Okay, because bank returning a check, बैंक हमें ये चेक वापस कर रहा है. तो बैंक सिंपल राइट बाय रहीम, बैंक रहीम को ये चेक वापस कर देगा और सिंपली बैंक ये चेक वापस करेगा. बिकॉज द बैंक से इस फ्रॉम दिस अकाउंट इज और दिस check is not valid because of certain reasons. By Rahim account, your bank will be decreases by 10,000 rupees because the bank simply says this check is dishonor. इस account में sufficient fund नहीं था. So this term is called dishonor of a check. Now dishonor exists, dishonor occurs. ठीक है, when the wrong amount is quoted, when the wrong account number is quoted, when when the account holder doesn't have the sufficient balance. So in that cases the check will be dishonor.
तो when the check will be dishonored, बैंक हमें वो पैसा नहीं देगा. अगर बैंक ने गलती से उस अमाउंट को हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया है, और सॉरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, तो बैंक वो अमाउंट काट लेगा. ओके, वो कट कर देगा, बिकॉज बैंक सिंपल से दिस अकाउंट इज दिस चेक इज डिसऑनर्ड. So these are the key transactions which are occur in triple column cash book, or we say the cash book with discount column. I hope you understand this sum. In any case you find any query, please do ask me. Okay, then later on we practice the question regarding triple column cash book, or we say that we practice the cash book question with bank and discount column. So till then guys, please take care and stay safe.